الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد استرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلست وأخذت كل خلقة بمكانها. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل کی اور صدقہ اور خیرات کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں جیسی ہے کہ جن دونوں نے لوہے کی زریں پہنی ہوئی ہوں اور اس زرہ کی سختی کی وجہ سے اور تنگی کی وجہ سے ان دونوں کے ہاتھ ان کے سینوں کے ساتھ اور گردنوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ پھر جب صدقہ کرنے والا آدمی صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور جب کبھی وہ صدقہ کرتا ہے، انبسطت عنہ، تو اس کی وہ زرہ کھل جاتی ہے اور اس کا ہاتھ صدقہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وجعل البخیل کلما ہم بصدقہ، اور بخیل آدمی جب کبھی بھی وہ صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی وہ زرہ اور زیادہ اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے اور اس زرہ کا ہر حلقہ اور ہر جوڑ اپنی جگہ پہ مضبوط ہو جاتا ہے اور ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ دل کی جو بیماریاں ہیں جو خود بھی دنیا سے پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بیماری بخل کی بیماری ہے، اور بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، کہ انسان اگر مال خرچ کرنا چاہے تو اس کی جان نکلے مال خرچ کرتے ہوئے، اور جو مال اس کے پاس جمع ہو تو اس کی کوشش یہی ہو کہ اس میں سے کوئی چیز خرچ نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ اس کے پاس جمع ہوتا رہے۔ پھر اس کے اندر وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے، بس اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے مال آنا چاہیے اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ پھر اس میں وہ جو حقوق واجبہ ہیں انہیں بھی ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جو اپنے اہل خانہ ہیں، اپنے گھر والے ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کرتے ہوئے اسے جو ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے اور وہ خوشی سے ان کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم
हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। फरमाया कि क़यामत के दिन दोज़ख की आग के अंदर जो है उसको सोना और चांदी को गर्म किया जाएगा और फिर उसके साथ जो है उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं को, उनकी पुश्तों को दागा जाएगा और अल्लाह की तरफ से ये कहा जाएगा कि ये वो ख़जाना है कि जिसे तुमने जमा किया था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस के अंदर बुखल की मज़म्मत बयान फरमाई और फरमाया कि इसका नतीजा जो है वो इंतहाई सख्त और गंभीर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए, सालिबा बिन अबी खातिब। अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मेरे माल और दौलत में इजाफ़ा फरमा दें और मुझे आसूदगी मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सालिबा किस लिए दुआ करवाते हो, जो है तुम्हारे पास उसके ऊपर क़नाअत करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर दुनिया का माल बढ़ गया तो तुम फिर उस माल का हक़ जो है वो अदा नहीं कर सकोगे। अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फरमाए कि सालिबा क्या तुम अपने रसूल की पैरवी नहीं करना चाहते, रसूल का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहते? उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ एक तरफ सोने के पहाड़ चलें, दूसरी तरफ चांदी के पहाड़ चलें, लेकिन मैंने जानबूझ करके इस तरीक़े को, इस रास्ते को इख्तियार नहीं किया और फ़क्र वाले रास्ते को इख्तियार किया है, तो तुम दुनिया की तलब न करो। अर्ज़ किया कि उस ज़ात की कसम जिसने आपको रसूल बरहक बना करके भेजा है, अगर आप मेरे लिए दुआ कर देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे ऊपर कुशादगी फरमा देंगे, मेरे माल में बरकत पैदा हो जाएगी, मेरा माल बढ़ जाएगा, तो मैं उस ज़ात की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं जिन लोगों के हुकूक़ होंगे मैं उनके हक़ अदा करूँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी कि अल्लाह तू सालिबा के माल के अंदर इजाफ़ा फरमा दे। फरमाया कि उसने चंद बकरियाँ उसके पास थी, तो चंद ही दिनों में कीड़ों की तरह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके माल के अंदर, बकरियों के अंदर इजाफ़ा कर दिया और इतना इजाफ़ा हुआ, इतनी बड़ी कि मदीना के अंदर उसका रहना जो है वो नामुमकिन हो गया। तो मदीना की रिहाइश छोड़ करके बाहर निकल गया, मदीना से वादी के अंदर चला गया और वहाँ से रोज़ाना जो है ज़ोर और असर की नमाज आकर मस्जिद नबवी में पढ़ता था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके माल में और ज़्यादा इजाफ़ा हुआ, तो वो जो वादी थी वो भी तंग पड़ गई, तो और ज़्यादा दूर निकला और फिर जुमा जो है जुमा की नमाज आ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबी में अदा करता और एक अरसे के बाद फिर जुमा की नमाज जो है वो भी रह गई और ज़्यादा जो है वो दूर निकल गया। फिर जब मदीने से कोई काफ़िले जाते तो आने जाने वाले काफ़िलों से मदीना का हाल अहवाल जो है वो पूछता और बाहर उसने रिहाइश रखी हुई थी। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि सालिबा इब्न अबी खातिब का क्या हुआ? अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बकरियों में इजाफ़ा हुआ और उसने मदीना छोड़ करके दूर बाहर एक वादी में रिहाइश इख्तियार कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया वही हसालिबा, वही हसालिबा, वही हसालिबा, सालिबा जो है हलाक हो गया, सालिबा हलाक हो गया, सालिबा हलाक हो गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का हुक्म जब नाफिज़ फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबी भेजे अपनी तरफ से सफ़ीर बना करके कि जाओ और जा करके ज़कात वसूल करो। सालिबा के पास जाओ और एक दूसरे सहाबी थे सलमा, उनके पास जाओ। वो दोनों सहाबी जब गए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पढ़ करके सुनाया, तो उसने कहा कि ये तो जिज़िया और टैक्स जो है मालूम होता है और मैं जिज़िया और टैक्स किस तरह से अदा करूं? और फिर कहा कि चलो तुम बाकी लोगों के पास चले जाओ, वहाँ से वसूल करके आओ, फिर मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। वो सहाबी दूसरे सहाबी के पास गए, सलमा के पास, उन्होंने खुशी के साथ ज़कात अदा की और वो लोग जब वापस फिर इसके पास आए तो फिर इसने उसी तरह बात की कि ये तो जिज़िया और टैक्स जो है, चलो तुम इस वक्त चले जाओ और फिर जो है मैं सोचूंगा इसके ऊपर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो दोनों सहाबी पहुँचे, अभी जा कर के उन्होंने कारगुजारी सुनाई नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सालिबा हलाक हो,
सालिबा हलाक हो। और दूसरे सहाबी के लिए, सलमा के लिए दुआ फरमाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत करीमा नाज़िल फरमा दी कि तुम में से बाज़ वो लोग हैं, आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिन सालिहीन, कि जो अल्लाह से ये वादा करते हैं कि अगर अल्लाह ने अपने फजल से हमारा माल बढ़ा दिया और हमें आसूदगी दे दी तो लनसद्दक़न्न, हम सदका और खैरात करेंगे, व लनकूनन्न मिन सालिहीन, और नेकोकारों में से हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया कि अपने फजल से उन्हें माल दे दिया, बखिलू भी, तो उन्होंने उसके अंदर बुखल किया। जब उस सहाबी को ये मालूम हुआ कि मेरे बारे में ये कुरान की आयत उतरी है, तो वो अपना माल ले करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये सदका कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे अल्लाह ने तेरा सदका कबूल करने से मना फरमा दिया। तो वो खाक उठा करके अपने सर पे डालने लगा, रोने धोने लगा। आपने फरमाया कि सालिबा, ये तुम्हारी बदअमली का नतीजा है। मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि ऐसा न करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और फरमाया कि फिर उसके बाद सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, फ़ारूक़ आज़म के ज़माने में, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में वो आता रहा, अपना माल पेश करता रहा। और इन सब हज़रात ने इनकार किया कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा माल कबूल नहीं किया तो हम कैसे कबूल कर सकते। तो इसलिए फरमाया कि जो बुखल है ये इंतहाई अज़ियतनाक बीमारी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके समझाया कि जो आदमी सखी होता है वो उसका हाथ जो है खर्च करने के लिए आगे बढ़ता है, और जो बखील है उसका हाथ जो है वो सीने के साथ लगेगा, गले के साथ जो है चिमट जाएगा। वो खर्च करना चाहता भी है तो उसका हाथ खर्च करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम बुखल से बचो, वत्तक़ुश्शुक्ख़ फ़इन्न शुक्ख़ अहलक मन कान क़ब्लकुम। इसी बुखल ने जो तुमसे पहले लोग थे उन लोगों को तबाह बर्बाद किया, और इस बुखल के नतीजे में उन्होंने एक दूसरे का खून बहाया और जो चीज़ हराम थी उसको हलाल समझा। तो इसलिए बुखल की जो बीमारी है ये भी इंतहाई अज़ियतनाक और ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र।